Good evening, ladies and gentlemen. On the behalf of DAN College of Education for Women, Namashahr, I welcome you all on the national webinar on National Policy on Education 2020 Issues and Concerns. I extend my heartiest welcome to Shri Vinod Bhardwaj, Acting President, Arya Samaj Namashahr, and Vice President, DAN College of Education Managing Committee, Dr. Meenakshi Sharma, Secretary, College Managing Committee, and Dr. Dinesh Chahal, our resource person. I extend heartiest welcome to all the participants also. Last year, we have witnessed new education policy 2020. And with the advent of this policy, the entire structure of education system has been changed, whether it is going to be changed, whether it is in the school education context, or in higher education context, or in teacher education, whatever you may say. In the recent years, in the coming years, you will witness that all the different systems will be going to change. The school system, which we are saying right now, is offering 2 + 2 + 3 system, but that system is going to be shifted from 10 + 2 + 3 to 5 + 3 + 3 + 4. And in school education, we will see there will be more focus on vocationalization. There will be more focus on inclusive education, and the school system will be more flexible. The school system will be much, much more flexible. A science student can opt music as an optional subject. Similarly, an art student who has a liking for the physics subject can choose physics as his optional subject. And this will happen only because of this new education policy, which is coming in this year, 2020, and which is being implemented throughout India from 2021 onwards. And there are much more changes in the higher education system we are facing. We will see the graduation will be changes from 3 to 4 year, and the graduation degree will be much more research oriented. Research will be a component, will be a compulsory component in this graduation degree. And the MPhil degree will not be there. And after graduation or after post-graduation, you can do directly to the PhD. And now I am not wasting much of your time, and I request our officiating principal, Mrs. Gurbinder Kaur, to welcome our resource person so that we can start our today's national webinar on National Policy on Education 2020. Madam Gurbinder, please. Good afternoon, everyone. I feel honored and privileged to welcome you all to National Webinar on National Policy of Education 2020 Issues and Concerns. On behalf of management, staff, and students of DAN College of Education for Women, Namashahr, I extend very warm welcome to our worthy resource person, Dr. Dinesh Chahal, Assistant Professor, School of Education, Central University of Haryana. I also welcome and thank Shri Vinod Bhardwaj, Vice President, and Dr. Mrs. Meenakshi Sharma, Secretary, College Managing Committee, for being with us. A very hearty welcome to all the participants, paracletes, and would-be teachers. As we all know, 2020, the year characterized by uncertainty. Years down the line, we shall remember how the world changed this year and life came to standstill. We have witnessed major unprecedented events till now, with one leading to the other. But one of the changes, which was not only anticipated, but rather necessary, came about in form of National Education Policy 2020 and happens to be one of the major breakthroughs during this period. The National Education Policy 2020 is aimed at transforming India's education system into modern, progressive, and equitable one. The new policy focuses on improving poor literacy and numeracy outcomes associated with primary schools, reducing dropout levels in middle and secondary schools, and introducing the multidisciplinary approach in higher education system. Besides, the policy also lays stress on early childhood education,
restructuring curriculum, pedagogy, reforming the examination process, and investing in teacher education. The new education policy has very impressive and appreciable propositions. It envisions a model of holistic learning that is integrated, engaging, and immersive. Scientific temper and evidence-based thinking will be inculcated along with aesthetics and art. Thus, National Education Policy 2020 lays emphasis on making the education system holistic, flexible, and aligned to the needs of 21st century education. But there lies a world of difference between laying down the policy on paper and following it in spirit. However, in order to accomplish the goals, we must overcome all the execution challenges in a sustained manner for years to come. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now it is time to introduce our resource person. Our today's resource person is Dr. Dinesh Chahal. Dr. Dinesh Chahal is Assistant Professor in School of Education, Central University of Haryana. He has more than 20 years of teaching experience. He has written many research papers in national and international journals. He has acted as a resource person in many national and international seminars. Yes, sir. Hello. Hello. Am yes, I sir. Audible? Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir. You are very much audible. You can skip this part. Okay, Sir, you can okay, skip sir. this part. Okay, sir. Okay, sir. Now it is over to you, sir. There is no need to introduction because I believe in the interest. Thank you. Okay, sir. Now it's up to you. Thank you, sir. Thank you very much. It's very easy for me after your deliberation by Dr. Gurvinder Kaur and Dr. Vikas, sir, because you have given. Am I audible, sir? Yes, sir. You are very much audible, okay. sir. अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, otherwise I will continue. आपका सर वो कैमरा ऑन नहीं है सर. नहीं, कैमरा मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो अच्छा जी. हाँ, उस सिग्नल की प्रॉब्लम है. ठीक है सर, ठीक है जी. ऑडिबल हो आप, ऑडिबल. हाँ. So now it's easy for me because you have given the brief about the policy or what are the policy expectations from teachers, from students, from research point of view. That is an easy task for me because this is the policy not after 1986, but sometime we can say this is the policy after Macaulay minutes, because till date we are following the same which was described in the Macaulay minutes. So it was the change in the total system of education if we will be able to implement this policy in letter and spirit. So now it's up to us how we can implement this. Or I can say this is the effort. I can say with the anecdote. एक आदमी जो लंगड़ाता हुआ जा रहा था और 4 अलग अलग डॉक्टर्स, सर्जरी का, डेंटिस्ट, तीसरा चौथा, 4 अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स थे. देन दे सेड कि सर्जरी वाले ने ये लंगड़ा कर चल रहा है, शायद इसको कोई हड्डी की प्रॉब्लम है. देन डेंटिस्ट ईएनटी वाला था, उसने कहा नहीं टॉन्सिल निकलवा के आया, इस करके लंगड़ा के चल रहे हैं. डेंटिस्ट ने कहा कि दांत निकलवा के आया. तो चारों ने अपने अपने हिसाब से बता दिया कि इस करके लंगड़ा के चल रहे हैं. फिर उन्होंने पूछा जो मरीज था भी आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो. उसने कहा मैं, मेरे पाँव के जूते में कील थी और वो कील मेरे को चुभती थी और वो कील 2-3 दिन मेरे को चुभती रही, इस करके मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, अभी ठीक है. तो मैंने क्यों सुनाया है, बिकॉज हम इससे पहले जड़ को नहीं पकड़ रहे थे. प्रॉब्लम इज विद द रूट्स. जो मैंने मैकाले मिनट्स कहा कि हम उस रूट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ हम नहीं जुड़ रहे थे. तो नाउ इट्स ट्राई टू बी लिंक्ड विद द रूट्स. व्हाट आर द रूट्स कॉजेस फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन. तो दिस policy tried
for that. अब शिक्षक भी शिक्षक और शिक्षार्थी की जहाँ पे, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी जैसे शिक्षक शिक्षा देगा वैसा हमारा स्टूडेंट प्रिपेयर होगा और वैसे ही वो डिपेंड करेगा हमारे एजुकेशन के सिस्टम पे, शिक्षा। तो अब उन तीनों में चेंज की बात की गई है इस पॉलिसी में, एज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर विकास. It was started from the not primary education but early childhood care and education will be included in this new policy. Because शिक्षा का मतलब प्राइमरी से हायर नहीं है, शिक्षा का मतलब जन्म से लेकर के और आपके लास्ट तक। और अकेला ये नहीं कि जीविका उपार्जन का, बल्कि जीवन को उपयोगी कैसा बनाया जाए, अपने जीवन को, अपने समाज के जीवन को और अपने देश के जीवन को कैसे में पढ़ते हैं, सा विद्या या विमुक्ति। तो एनईपी में वहां से रूट से बात की गई है एनईपी 2020 में कि व्यक्तित्व का संतुलित विकास कैसे हो और जो राष्ट्र का संपूर्ण विकास कैसे हो। तो एनईपी दैट मीन्स अ टाइप ऑफ इंस्पिरेशन। मुझे आपत्ति नहीं है आप लेनिन को पढ़ें, बिस्मार्क को पढ़ें, आप एरिस्टोटल को पढ़ें, प्लेटो को पढ़ें, लेकिन उससे पहले हम विदुर चाणक्य को भी पढ़ें जो हमारे अपने हैं। तो वो एनईपी में बात की गई है कि भारत से ग्लोबल सिटीजन, भारत मीन्स आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस, तो भारत से हम ग्लोबल सिटीजन की तरफ जाएंगे। सर आवाज आ रही है ना? Am I audible, sir? Yes, sir. आवाज आ रही है? Okay. तो मेन यहाँ पे क्रक्स क्या है? आप फर्स्ट टोटली देयर आर 27 चैप्टर्स आर देयर। उन 27 में उसको मुद्दे कहें चैप्टर कहे, 8 आर रिलेटेड विद द स्कूल एजुकेशन, 10 आर रिलेटेड विद द हायर एजुकेशन एंड 8 जो डिफरेंट है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, थर्ड और फोर्थ पार्ट में सॉरी, दैट आर इम्पोर्टेंट इश्यूज और यू कैन से महत्वपूर्ण पहलू, अदर की एरियाज और जो हाउ इट policy will be implemented, how it will make happen. So 27 chapters are there, only 66 pages are there, 66 pages, but in these 66 pages that is the roadmap for our future education. तो मैं जो कह रहा था कि हम ठीक है वेस्टर्न को भी पढ़े नो डाउट, बट अपने इंडियंस को भी पढ़े। कार्ल मार्क्स की माँ ने, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स का एक बगीचा लगाया हुआ था और उसकी मदर ने, तो उसकी मदर देखभाल करती थी पेड़ पौधों की। देन हुआ क्या कि उसकी मदर बीमार हुई 1 महीने के लिए, तो देन ही इंस्ट्रक्टेड कार्ल मार्क्स की इन पेड़ पौधों को देखना है हमने। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उन पेड़ पौधों की अच्छी देखभाल की, उनको पत्तियों को पूरे कपड़े से साफ किया, पत्तियों को गीले कपड़े से साफ किया। 1 महीने बाद जब माँ ठीक होती है, उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। उसने कहा तुमने पानी नहीं दिया अच्छी तरह से, इनकी देखभाल नहीं की। उसने कहा मैंने पानी भी दिया, मैंने पत्तों को बिल्कुल गीले कपड़े से साफ किया, सूखे कपड़े से साफ किया। तो उसने कहा पानी जड़ों में डालना था, पत्तों तक और फ्रूट्स तक तो अपने आप ही पहुंच जाता। तो सेम यही कि जब तक भारतीयता नहीं होगी, जब तक इंडियनाइजेशन नहीं होगा एजुकेशन का, तो उसका हम रूट से नहीं जुड़ेंगे, कहने का मतलब। तो तब तक वो, हम जब रूट से जुड़ेंगे तो बच्चे आगे कामयाब हो पाएंगे ना। स्वामी रामतीर्थ एक बार गए जापान में, उन्होंने देखा जो बर्ड पीपल है वो छोटे छोटे गमलों में भी लगे हुए थे। तो क्यूरियोसिटी हुई उनको, उन्होंने पूछा कि ये आप बर्ड पीपल, बरगद के पेड़ तो बड़े बड़े होते हैं, आपने गमलों में कैसे लगाए हैं, इतने बड़े, ये कैसे सस्टेन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इनकी जड़ें काटते रहते हैं, जैसे बड़े होते हैं जड़ें काटते रहते हैं, जड़ों को काटते रहते हैं, मूल पे प्रहार करते हैं। तो सेम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, मे बी बाय द ब्रिटिशर्स और अदर्स। तो अब जो सवाल है एनईपी 2020, वो ऐसे हम जड़ों को मजबूत करने की बात है, नौजवानों को मजबूत करेगी, और जो हमारे पीपल बरगद जैसे फैलते हैं, इस तरह से हमारे नौजवान फिर राष्ट्र के लिए और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन 21st सेंचुरी में बड़ा जरूरी है जो एनईपी बताती है, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। लर्निंग ही नहीं अकेली, लर्निंग के साथ साथ अनलर्निंग की बात है, रीलर्निंग की बात है, क्योंकि 21वीं सदी यही कहती है। नो डाउट कि जो हमारे
मशीन्स, टेक्नोलॉजी, आने वाला समय उसी का है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, बिग डाटा की बात करते हैं, सारा एनईपी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें है। बट उसके साथ साथ हमें लर्निंग पहले सीखना होगा, टेक्नोलॉजी नई क्या है, हमारे टाइम के साथ बदलाव कैसे हैं, है ना। बट उसके साथ साथ अनलर्न, कुछ भूलना भी होगा। अनलर्न का मतलब जो काम का नहीं है, और रीलर्न का मतलब कुछ नया सीखना होगा। दैट ऑल इन आवर एनईपी 2020। ये जरूरी है, लर्न, अनलर्न और रीलर्न 21st सेंचुरी के लिए जरूरी है। स्पेंसकी मैथमेटिक्स सीखने के लिए खोज करता है अपने गुरु की। स्पेंसकी जब जाता है उसको गुरजोफ मिलता है, तो उनको जो गुरजोफ मिलते हैं गुरु के रूप में, तो उनको कहा कि मेरे को मैथ सिखाओ। तो गुरजोफ ने उनको कहा कि आपको ये पहाड़ी सामने दिख रही है, इस पे चढ़ करके आओ। जब वो चढ़ करके आया, थक गया बिल्कुल, और गुरजोफ ने उसको चाय ऑफर की, और चाय उसके कप में डालते गए डालते गए डालते गए, वो बाहर निकल गई। तो उसने कहा कुछ समझ आया? बोला नहीं। बोला इसका मतलब ये है जो आपने सीख रखा है पहले उसको खाली मतलब उसको अनलर्न करो, फिर हम रीलर्न करेंगे, ठीक है ना। जो पहले आपने गलत चीजें सीखी है पहले उनको मतलब आप भूल जाओ या उसको निकाल दीजिए। तो सेम विद द आवर एजुकेशन सिस्टम ड्यू टू ब्रिटिश सिस्टम और ड्यू टू मैकाले सिस्टम। तो उन भूलों को पहले दूर करना होगा। बीथोवन वाज अ ग्रेट यू कैन से म्यूजिशियन। तो उसके पास दो तरह के सॉरी जब संगीत सिखाता था वो लोगों को, तो दो तरह की फीस रखी हुई थी उसने। वो कहता था जिसको कुछ नहीं आता मैं फ्री पढ़ाऊंगा, और जिसने कह दिया कि मेरे को कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैं $100 लूंगा। तो कहते हैं ऐसा क्यों है? वो कहता है जिसको नहीं आता तो मैं शुरू से सकता हूँ, इसलिए उसकी फीस नहीं है। लेकिन जिसको कुछ आता है, जो कहता है मेरे को आता है, उसको पहले कुछ भुलाना पड़ेगा, लर्न, अनलर्न और रीलर्न ना। तो सेम एनईपी हमारी यही हमें इशारा कर रही है कि वी हैव टू लर्न रीलर्न। तो वो हमारे उस कहने का मतलब क्या है। और इवन सुकरात जब आखिरी रात जहर का प्याला उसको दिया गया, रात में भी संगीत सीखना शुरू कर सके, कितना पे जो डॉक्टर विकास ने भी आपको इशारा किया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ग्रेजुएशन लेवल पे, और उसके साथ साथ मल्टी डायमेंशनल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस यू कैन से एनईपी। तो एनईपी में उसको सिंपली कहूं तो हमें सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, साहसी बनाएगी, संवेदनशील बनाएगी, संकल्पित बनाएगी, समर्पित बनाएगी, जो इस तरह के नवयुग तैयार करके हम राष्ट्र के लिए युवाओं को, बच्चों को हम तैयार कर पाए। तो ये हमारी राष्ट्रीय जो नीति है 2020, ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा कि पुरानी नीति 1986, 1968, मैं कहता हूँ वो भी अच्छी थी, बेस है वो। तो उसके लिए मैं कहता हूँ चलो कुछ अच्छा हो जाए, दैट मीन्स। और अब वो मैं पुराने के लिए कह रहा हूँ और नई के लिए कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कुछ बेहतर हो जाए। तो दैट इज द एफर्ट्स फॉर द more important improvements in the system of education. That is a try for that. बड़ा रोमांचित हुए जब 2020 में जुलाई 29 को ये घोषणा हुई कि हमने 1835 जो मैकाले मिनट्स उसको जड़ों से काटा। और ये एक तरह से विश्व का मैं कहूँ सबसे बड़ा मंथन था, जिससे अमृत सामने आया। 5,000 से ज्यादा शिक्षक जुड़े, 2 लाख ज्यादा सुझाव आए, 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें जुड़ी, 66,000 से ज्यादा ब्लॉक जुड़े, 700 के करीब डिस्ट्रिक्ट जुड़े। और फिर उसके बाद 484 तो सुब्रमण्यम साहब का था जब फर्स्ट ड्राफ्ट बना। देन 66 पेज में कस्तूरी रंगन और उनकी पूरी टीम का मैं कहूंगा वो निचोड़ निकाल दिया। तो वो एक बड़ा मंथन विश्व का पूरे मैं कहूँ, जहां पे उसको मैंने समझा, जहां पे ये एनईपी वाज द रिजल्ट ऑफ 4 स्टेप्स। क्योंकि कोई भी काम या कोई भी नीति जब हम लागू करते हैं उसमें 4
और मैंने देखा है इसमें 4 फर्स्ट इज कल्पना, आपका एक दिमाग में खाता, कल्पना एंड भावना, आपकी फीलिंग्स जो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योजना, प्लानिंग, अब तीनों ये पूरी हो गई है, कल्पना भी हो गई, भावना भी हो गई, योजना भी हो गई। योजना का मतलब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इतने टाइम में हम ये करेंगे, 2030 तक ये करेंगे, 2035 तक ये करेंगे, 2040 तक ये करेंगे। लगभग अगले 20 सालों में इस जो एनईपी है उसका रिजल्ट्स के लिए बात की गई कि लगभग 20 सालों में पूरा अमूल चूल परिवर्तन की बात की गई है। और लास्ट जो हमने करना है दैट इज साधना, हाउ डिवोटेड वी आर टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। तो चौथा पार्ट हमारे पे छोड़ दिया है, कल्पना भावना योजना हो गई है, अब साधना हमने करना, कैसे हम प्री प्राइमरी से लेकर के और लास्ट जो हायर एजुकेशन तक इवन हम चेंज कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एक ना Sir, your voice is not audible. पुराना सिस्टम वो भी चल रहा है साथ साथ, और नए सिस्टम गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, पॉलिसी बना के दे दी, लेकिन नाउ वी हैव टू प्लेस हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट और हाउ वी कैन प्लान इट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दैट इज आवर ड्यूटी, दैट इज आवर रोल, यू कैन से इन दिस NEP 2020 implementation, है ना। बिकॉज एवरी पॉलिसी और प्रोग्राम, ये आपने जो प्रोग्राम किया है इवन ये भी, किसी में भी 3 I आर इम्पोर्टेंट, 3 I's आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन है, इंस्पिरेशन है उसमें, बट थर्ड I दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज implementation. That is our duty, that is our role, how we can implement it in a better way. So that is our, you can say, duty. और ये बचपन से लेके, मैंने कहा ना, बचपन से लेके और जो हायर एजुकेशन तक की बात, उसमें कैसे कैसे हम करेंगे, विद प्लानिंग, विद टाइमलाइन, किसका रोल क्या है, उसके साथ कहीं कहीं कमियां हैं नो डाउट, लेकिन हम कमियों को ना देखते हुए जितने भी हमसे बेस्ट बनी है उसको बेस्ट इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। और बचपन में तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, जहाँ बिलो 6 ईयर से भी, हम पहले 6 to 14 ईयर से शुरू करते थे एजुकेशन को, बट नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिलो 6 ईयर्स आल्सो, इवन 0 to 3 ईयर्स NCERT विल वर्क फॉर दैट। तो अच्छा है कि जिम्मेदारियों को बोझ नहीं, जिम्मेदारियों को बोझ नहीं, बचपन की मस्ती थमाएं और इन बच्चों को उड़ने को पंख लगाए। तो वो उड़ने के पंख लगाने के लिए NCERT को काम दिया है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द सिलेबस और करिकुलम फॉर द आंगनवाड़ी और बालवाड़ी और बाल भवन, इवन वहां से हम शुरू करेंगे इसको। तो ये अच्छी बात है हमारी पॉलिसी में एक, जिसको हम कहें। और उसके साथ साथ ये पूरा मैंने जैसे बताया आपको, कस्तूरी रंगन और उनकी पूरी टीम की तपस्या है, जो पॉलिसी में हमें एक फेथ दिखता है, विश्वास से भरपूर, संकल्प से सधी हुई, सिद्धि में अटूट और श्रद्धा के साथ जो हमारे सामने नई नीति है, वो एक विश्वास दिलाती है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, हर स्टेक होल्डर्स को। अब यहाँ पे व्हाट टू लर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ टू लर्न दैट इज इंपॉर्टेंट, विद एक्टिविटीज। और जब एक्टिविटीज होगी वहां बच्चा एजुकेशन को बोझ नहीं मानेगा, क्योंकि दिक्कत ही आती है सर, अभी आप देखते हैं बच्चे को हम 3 साल में 2.5 साल में स्कूल में डाल देते हैं, शुरू से ही आपका मार्क्स का प्रेशर, आपका ग्रेड का प्रेशर, तो बच्चा पूरी उम्र भर उन्हीं मार्क्स में, ग्रेड में, प्रेशर में रहता है ना। तो इस नई पॉलिसी में ये हम एक्टिविटी लर्निंग और यू कैन से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, तो सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिखाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट टू लर्न नहीं, हाउ टू लर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस पॉलिसी के लिए मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बच्चे का जो टेंस है, बच्चे का जो प्रेशर है, वो रिलीज करेगी कि हो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो।
हो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो। देख माझी, माझी कौन है यहाँ पे? टीचर। देख माझी, याद रखना नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो। वो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो। नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो। एक बात याद रखना, नाव तो पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो। नाव में पानी ना हो। दैट मीन्स वो जो एजुकेशन सिस्टम एक प्रेशर था, बोझ बना हुआ था, शायद वो कहीं ना कहीं अब रिलीज होगा बच्चे से, जहां बच्चा 3H को मिला पाएगा। 3H जो गांधी जी के हेड्स, हैंड्स एंड हार्ट, शारीरिक भी, मानसिक भी, और जिसको हम हार्ट बोलते हैं, जिसको हम जज्बात बोलते हैं, उनको हम मिला पाएंगे। देन इट विल बिकम होलिस्टिक। जब हम तीनों एच को मिलाएंगे देन इट विल बिकम द होलिस्टिक। तो वहां जो आप इंक्लूसिव की डॉक्टर विकास बात करें, समावेशी भी बना दिए थे साइंस वाले, जब भी डॉक्टर विकास कर रहे थे कि हाँ अब आपका साइंस वाला आर्ट्स में, आर्ट्स वाला साइंस में, दैट इज बंटवारे की बात नहीं, अब बांधने की बात हो ना। तो पॉलिसी कोई भी होती है, नो डाउट, एनईपी 2020-B1 उसमें 3 पास, जिसको हम बोलते हैं ना 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमने अपने पास्ट को भी ध्यान रखा है इस पॉलिसी में, प्रेजेंट को भी ध्यान में रखा है, जो पेशेंट को अपनी सिविलाइजेशन को भी इसमें इंपॉर्टेंस दी है, और प्रेजेंट का मतलब हमने चैलेंजेस को भी ध्यान में रखा है। और फाइनली फ्यूचर मींस विजन। अगले 20 साल में, अगले 50 साल में क्या होगा उस विजन के साथ। क्योंकि ये पॉलिसी आपने नोट किया होगा, एसी के कमरों में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के नहीं बनी। इवन स्टेक होल्डर्स को कितने लार्ज लेवल पे मैंने बताया, कितनी कंसल्टेशन, ह्यूज कंसल्टेशन हुई है ना, घूम घूम करके पॉलिसी बनी है। तो ये हमारी पॉलिसी जो यस मिनिस्टर वाले यूथ को प्रिपेयर नहीं करेगी, यंग मिनिस्टर्स तैयार करेगी। बिल तो आ गया है, अब हमारी विल चाहिए, है ना। अब हमारी टर्न है, मैं जो बार बार मैं कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दैट इज लार्जली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स और टीचर्स, मोस्टली ऑन द टीचर्स। सो बिल तो है, अब हमारी विल चाहिए, क्योंकि नीति तो आ गई है, अब नियति चाहिए। हमारी जो नीति तो आ गई है, नियत चाहिए कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। तो सब कुछ इसमें है। अब हमने देखना है हाउ वी कैन ज्वाइन आवर हैंड्स प्लस हार्ट्स टू रियलाइज दिस पॉलिसी। हाउ वी कैन ज्वाइन ईच अदर, उसमें ज्वाइन की भी बात की गई है, कौन कौन लोग मिलेंगे। Because life, education is not for the school or for the college or university. Education is lifelong learning. तो लाइफ कोचिंग अप्रोच मेरे को लगा इसमें है, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी कल्चर की हम बात करते हैं। मेरी लाइफ LIF की जो मैंने पॉलिसी से निकाला, उसमें मैंने देखा लाइफ LIF मीन्स लर्निंग के लिए स्कोप, L मीन्स लर्निंग, I मीन्स इनिशिएटिवनेस के लिए स्कोप। तो ये की बात करती है, लर्निंग, इनिशिएटिवनेस। कह रहा था कि मनुष्य को मनुष्यता या मानवता के गुण की बात करती है, वैल्यूज की बात करती है, हमारे जो इंडियन एथोस है उससे वैल्यूज की बात करती है। क्योंकि दिक्कत ये है, हमने इंजीनियर भी बनाए, डॉक्टर भी बनाए, मैनेजर भी बनाए, ब्यूरोक्रेट्स भी बनाए, लेकिन हम अच्छे इंसान बनाना भूल गए। तो इस पॉलिसी में उन वैल्यूज के थ्रू अच्छे इंसान की भी बात की गई है कि हम अच्छे इंसान बना पाए। कभी सागर में जाने की, कभी सागर की गहराइयों में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश को ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना है, अभी सीख ना पाया जमी पर रहना, सुना है उसकी चांद पर जमी बसा, चांद पर दुनिया बसाने की तमन्ना है। तो हम ठीक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनाएंगे इस पॉलिसी में, वो भी हमारे, क्योंकि पॉलिसी का मतलब 2020 नहीं है, 2030 का जो SDG का एजेंडा है उसके साथ अलाइनमेंट की हुई है हमने पॉलिसी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है उसके साथ हमने फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है। लाइक 2030 तक एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव यूनिवर्सिटी, 2035 तक GR 20 to 50% होगा हायर एजुकेशन में। तो वी हैव द टाइमलाइन फॉर एवरी एस्पेक्ट और एवरी स्टेज। जी ने एक बात कही थी, मेरे को लगा ये 3H का फॉर्मूला वही है जो मदन मोहन मालवीय ने बहुत पहले दिया था। उन्होंने कहा था वो मेरे को लगा कि होलिस्टिक एजुकेशन वही है।
उन्होंने कहा था कि दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, दैट मीन्स फिजिकल वेलनेस, फिजिकल डेवलपमेंट। नित्य जपो हरि नाम, दैट मीन्स स्पिरिचुअल पार्ट। मन लगाए विद्या पढ़ो, दैट मीन्स एकेडमिक इंटेलेक्चुअल। और पूरे होंगे सब काम, दैट मीन्स होलिस्टिक। सो दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरे होंगे सब काम। तो ये जो एजुकेशन है वो मुक्ति की बात करती है, बंधन की बात नहीं करती, बंटवारे की बात नहीं, जोड़ने की बात करती है। क्योंकि हमने नौकरी से बांध दिया था एजुकेशन को ना, और फैकल्टीज में बांट दिया, आर्ट्स वाले, साइंस वाले हैं, वोकेशन वाले हैं, नॉन वोकेशन वाले हैं। तो अब मुक्ति की बात करें, है ना। और एक और गलती जो हमसे पिछली पॉलिसीज में हुई थी, हमने देखिए फर्स्ट जो हमारी गलती हुई थी, हमने फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बनाया, दैट वाज इन 1948 फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हमने हायर एजुकेशन से स्टार्ट किया, बट हमने बेस से स्टार्ट करना, नो डाउट। तो दिस पॉलिसी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस। प्री प्राइमरी से भी पहले की हम बात करते हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन, इस पॉलिसी में ये बात की गई है। चलिए, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता, अगर आपने हायर एजुकेशन से शुरू किया तभी आज हमें IIT II नए भारत के निर्माण की बात करती है, कौशल विकास की बात करती है, जिम्मेदार नागरिक बनाने की बात करती है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, ग्लोबल सिटीजन बनाने की बात करती है। तो ये पॉलिसी को मैं कह सकता हूँ, इट इज पॉलिसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों करके मैं जस्ट, क्योंकि मैं एक जस्ट ओरिएंटेशन दे पाऊंगा, अदरवाइज तो एक ही एस्पेक्ट में बहुत बोल सकता हूं मैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट विल बी अम्ब्रेला टर्म। उसके अंडर फिर हमारे NHERC होगा, जो हायर एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, रेगुलेटरी कमीशन NHERC। इसी तरह से HEGC ग्रांट कमीशन जो होगा, और एक होगा NAC NAC की जगह आपका एक्रेडिटेशन के लिए, और एक होगा फोर्थ जनरल अम्ब्रेला टर्म के अंदर वो सारे हमारे वर्टिकल्स होंगे जो। और एक SCZ की बात कही है, पहले हम SCZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन मानते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एजुकेशन। और एक जो डॉक्टर विकास ने इशारा किया था कि वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th ऑनवर्ड्स। बना पाएगा कौशल को डेवलप करके, कौशल भारत का एजुकेशन के बाद ही आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो पाएगा। एक जो मैं कह रहा था कि हम उसमें के थ्रू हाउ टू लर्न इंपॉर्टेंट होगा, जहां बच्चे ओरिजिनली सोच पाएंगे, दे कैन बी ओरिजिनल थिंकर। 21st सेंचुरी के लिए कॉपी करने वाले नहीं चल पाएंगे, है ना। कॉपीराइट्स जिनके पास होगा उस तरह के, पेटेंट्स जिनके पास होगा उस तरह के हमें चाहिए, ओरिजिनल थिंकर्स होंगे, तब हम पेटेंट की बात करेंगे, तब हम कॉपीराइट्स वालों की बात करेंगे ना। दिस पॉलिसी हैज क्लियर विजन, और उसमें मेरे को लगा 3S और 3E का कॉम्बिनेशन है। 3S मेरा क्या है? S means first S is success, second S is sustainability, and third S is for the society. सक्सेस भी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, फॉर द सोसाइटी। तो दिस इज माय 3S फॉर्मूला। और 3E's फॉर्मूला इज इक्विटी की बात है, एक्सीलेंस की बात है, फॉर एवरीबॉडी, इक्विटी एंड एक्सीलेंस फॉर एवरीबॉडी। So this is my 3E's and 3S formula in this policy. And again, this policy will cover all the aspects which can make us, जिसके आप स्वावलंबी, स्वाभिमानी, शिक्षित, सुसंस्कृत, सुदृढ़, सशक्त राष्ट्र, जिसको आप विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर सकते हो, उस टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। तो दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस पॉलिसी। और जैसा डॉक्टर विकास वाज सेइंग कि इस पॉलिसी में आपका एक जो स्कूल एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक चेंजेस आर देयर, और
वो चेंजेस क्या है, मेनली आपके स्कूल एजुकेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वहां पे स्ट्रक्चर में चेंज है. नाउ we all are in the system of 10+2 system, but now it will change to the 4 parts. One is foundational part, that is up to 8 years, that have 2 stages. One is 3 to 6, that is Anganwadi or Balwadi system, and one is 6 to 8 years, that is class 1 and class 2, that is foundation stage. Second stage will be preparatory stage for class 3 to 5th class, 8 से 11 साल तक. And third stage is middle stage, that is 6 to 8th class, and fourth stage will be secondary from 9 to 12th class. So now structure will be changed, that will be called as a 5+3+3+4 system. इसका पर्पज क्या है? So how we can provide the better overall learning, development and well-being to the students. तो उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर से बात स्टार्ट की गई, अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर के, और फिर वहां पे एनसीईआरटी, जैसे हमने बताया कि 0 to 8 years का करिकुलम, एनसीईआरटी विल प्रिपेयर दैट करिकुलम. उसमें इवन पेरेंट्स और टीचर्स को भी हम, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग, दैट विल इन्वॉल्व आर्ट, स्टोरीज, पोइट्री, गेम, सॉन्ग्स, और जो भी बच्चा एंजॉय करता है उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा. और इसी साथ साथ में हम स्ट्रेंथन करेंगे आंगनबाड़ी को, उनको प्राइमरी स्कूल से भी जोड़ा जाएगा जो इस पॉलिसी में हमारे है आंगनबाड़ी को, और स्पेशली जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन करेंगे हेल्थ चेकअप के लिए. जो इवन मिड डे मील तो हमारे पहले ही है, इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी शुरू करेंगे इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, और प्लस हेल्थ चेकअप एक रेगुलर फीचर होगा, सो वी कैन मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. और ट्रेनिंग ऑफ द आंगनबाड़ी वर्कर, हमको 2 तरह की ट्रेनिंग है, वो डिटेल में फिर बात करेंगे हम उसकी. और उसके साथ साथ जो ज्वाइंट टास्क होगा, ईसीसी कोई स्कूल का या आंगनबाड़ी वाली मिनिस्ट्री का नहीं है, इट विल बी द ज्वाइंट टास्क ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, लाइक 3-4 ministries are there. Ministry of Education, that will be the major agency. With that, Women and Child Development Ministry, Health and Family Welfare Ministry, and Tribal Affairs. So all these ministries will work together for improvement in the ECCE. Okay. और उसमें जो मेन फंडा हमारा रहेगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड there is a urgent or learning. तो पॉलिसी में जो हमारा पॉलिसी, क्योंकि डिपेंड करेगी, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो फाउंडेशन से बात की गई है ना. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है फाउंडेशन लिटरेसी, बाय दैट इज द टारगेट फॉर दैट, सो वी कैन अचीव द टारगेट बाय 2025 तक, है ना. प्लान बनाना होगा ना. और उस जो ईसीसी बहुत सारी क्रिएट करने, स्पेशली लोकल टीचर्स पे फोकस, बच्चा अपनी लैंग्वेज उससे रहता है. और जो पीटीआर की बात की है 1:30, एक टीचर के पीछे 30 बच्चे. और इवन जो एसओईडी क्या है, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है, उनके लिए इवन 25:1 भी हो सकता है. जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे, तो वहां पे एक टीचर के पीछे 25 बच्चे भी हो सकते हैं. तो इस बात की गई. तो ग्रेड 1 में स्पेशली जो आपका ग्रेड 1 आएगा, फिर उसके बाद तो 3 months आपका प्ले बेस्ड स्कूल, उसको बोल रहे हैं हम प्रिपरेटरी एससीईआरटी की हेल्प से उसका करिकुलम प्रिपेयर करेंगे. और इवन दीक्षा जो पोर्टल है ट्रेनिंग के लिए, दीक्षा मींस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो उसके थ्रू हम टीचर्स को भी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट विल बी अवेलेबल ऑन द दीक्षा पोर्टल. तो बहुत सारे जो, और हेल्थ के लिए मैंने बता दिया, मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट, और प्लस मेडिकल चेकअप एक नया जो फीचर आया, इसमें दोनों नए फीचर है आपके, मेडिकल चेकअप प्लस आपके, और 100% इम्यूनाइजेशन इन द स्कूल्स. हेल्थ कार्ड बनेगा, सो वी कैन मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स. और GER 2030 तक जो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं,
तो बाय 2030 100% GER प्री स्कूल से लेकर के और सेकेंडरी स्कूल तक. दैट इज द टारगेट ऑफ अवर NEP 2020. लेकिन देयर इज अनदर चैलेंज ऑफ ड्रॉप आउट्स. सो ड्रॉप आउट्स के लिए भी NEP ने सजेस्ट किया है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड द sufficient infrastructure. Second, regular trained teacher. Third, we can provide the safe environment or other facilities, or you can say convenience to the schools, maybe in terms of hostel, maybe in terms of buildings, etc. Or we have to provide alternative or innovative education centers. And again, there is suggestion in the NEP to achieve the universal participation of the students. That is carefully tracking students, tracking of the learning, kitna wo seekh paye, counseling service, trained and qualified social worker from civil society, so we can include the society also. और एक ensure quality. क्वालिटी के लिए एक तो लोकल लैंग्वेज और एक जो आपका इनिशिएटिवनेस इन द स्कूल लर्निंग और इंसेंटिव टू द टीचर्स, दोज हु विल डेवलप द मटेरियल इन द लोकल लैंग्वेज, सो दे कैन बी मोर एंगेजमेंट्स इन द लर्निंग. और लर्नर्स को फैसिलिटेट करने के लिए फिर सजेस्ट किया कि जितने भी हम मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग हो सकते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओपन, डिस्टेंस प्रोग्राम, सारे के सारे को हम इंक्लूड करेंगे, सो वी कैन अचीव द टारगेट बाय 2030, 100% एनरोलमेंट फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द सेकेंडरी एजुकेशन. और अगेन करिकुलम में भी बहुत सारे करिकुलम और पेडागोजी में जो मैंने बताया कि वो मेन है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, enjoyable and engaging. That is the target of NEP 2020. So less weight of bag, burdenless education. Professor Yaspal 1993 में कहते कहते चले गए, लेकिन उस बैग को कम नहीं कर पाए. Now this policy suggests how we can lessen the weight of the bags, how we can make students physically and mentally strong through the counseling service and all. So that वो फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के मिडिल स्टेज से लेकर के और सेकेंडरी स्टेज तक सब कुछ उसमें सजेस्ट किया गया है. करिकुलम में क्या क्या होगा, किस किस वे से हम स्टाइल, करिकुलर स्टाइल्स क्या होंगे, फाउंडेशन स्टेज पे क्या होंगे, क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होगा, मिडिल स्टेज पे क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी फोकस्ड, और सेकेंडरी स्टेज पे आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, और 6 ऑनवर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. So that will work for the holistic development of the learner. That will reduce the curriculum content, so they can become the critical thinkers. So they can be, you can say, problem solver. Or experiential learning will be focused at all the stages. That experiential learning will be adopted. That will provide you hands-on learning, art integration, sports integration, storytelling-based pedagogy. So these or that assessment tools, including assessment as, assessment of, and assessments for learning. Assessment as means हम बात करेंगे learning outcomes, capabilities, assessment of capabilities, and assessment for, we can say, for each stage, for each type of courses, how we can assess. So assessment भी change होगा, system 360 degree evaluation assessment of the students. Not only कि teachers ने test लिया वो, no, peer assessment, self assessment, parents assessment. So सारे के सारे assessment के तरीके और हर आयाम का, हर aspects का, not only academics, but जो दूसरे field में अगर वो कर सकता तो अच्छा, then we will assess those, है ना. तो self assessment, peer assessment, parents assessment, teacher assessment, so that will be 360. और empowering students through the flexibility in the course choices, जो डॉक्टर विकास बता भी रहे थे आपको कि now you have the choices of courses. You can take the science subject, whether you are opting for the arts. You can take the arts subject, whether you are opting for the science. No, there is no hard separation among the curricular or co-curricular activity, extracurricular activity, art, science, between vocational, academic stream. So you can choose any subject. No hard separation.
और multilingualism and power of learning, that is very important, क्योंकि students can learn or children can learn easily in their own language. So multilingualism और power of language को समझते हुए all the good material will be translated into the regional languages, so students can learn easily. So these or this is all for the school education. There are much more things related to the skills. As I said, skill education will be start from your 6th onwards. There are many more national textbook and local content will be through, will promote the multilingualism. Assessment, जैसे हमारा था assessment for learning, 360-degree multidisciplinary report card will be there, where you can include cognitive or affective aspects. Here भी आपको assess करेंगे, parents भी, self assessment भी, teachers assessment भी, all these will be our, you can say, or support for the gifted students or specially talented students, जिसको inclusive education की बात कर रहे थे डॉक्टर विकास. So that will be the again new feature in this policy. और उसके साथ साथ teacher is the important component, because teacher will shape the future. So best talent will come efforts of NEP 2020. और बेस्ट टैलेंट आएगा देन टीचर विल बी रिस्पेक्टेड. तो उसकी रिक्रूटमेंट के लिए भी, रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एनईपी से सिलेक्शन ऑफ टैलेंटेड वुड बी टीचर्स, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज. 3 तरह के प्रोग्राम्स की बात की गई, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम. उसके बाद में teacher education. So that is basically कि जो टीचर एजुकेशन में प्रॉब्लम हेलो एम आई हेलो सर. हाँ जी सर, आ रही है आवाज आपकी. मैडम आ रही है सर. मैडम आवाज आ रही है सर? आवाज आ हाँ रही जी है आ रही है सर. बीच में आ रही सर, आ रही जी, आ रही है. तो हाँ जी, हाँ, जहाँ डिस्टर्बेंस हो बता दिया करो सर, क्योंकि मेरे को हाँ पता जी, लगता है. ठीक है सर, ठीक है, ठीक. School complex is the, you can say, important feature in this policy. That is the group of the schools. So you can share the resources, maybe human resources, maybe material resources, maybe facilities, maybe lab, maybe ground. तो तौर पे हम सुविधाओं को स्कूल की एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे. So that is the idea behind the you can say school complex. और उसके साथ साथ continuous professional development के लिए, that is a very important feature in this policy, that 50 hours per year every teacher or even headmaster or principal will be trained. 50 घंटे की हर साल ट्रेनिंग आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की. और अगेन प्रमोशन के लिए कह लीजिए CMP उसको बोलते हैं, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, कि जो प्रमोशन होगी दैट विल नॉट डिपेंड ऑन योर length of service, but that will depend on your performance.
That will depend on the performance. So that is the criteria for the promotion, or that is important aspect, that is professional standards for teachers, national professional standard for teachers by 2022 by NCT. NCT क्या प्रिपेयर करेगी कि जो टीचर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगी, क्राइटेरिया। तो उसके बेस पे टीचर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे। दैट इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कि हमारा टीचर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या होती है रोल की, उसमें क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए टीचर्स, तो उनको देखते हुए देन एनसीटी विल प्रिपेयर इट बाय 2022 तक एनसीटी ने प्रिपेयर करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। पीरियोडिक बेस पे हम उसको चेक कर पाए, वो प्री प्राइमरी स्टेज से लेकर के और इवन सेकेंडरी स्टेज तक वही प्रमोशन का आपका क्राइटेरिया होगा, सैलरी इंक्रीज का क्राइटेरिया होगा। और दैट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज इन 2030। जब 2022 में बन जाएंगे उसको फिर रिवाइज करेंगे जैसी जरूरत होगी। और स्पेशल एजुकेटर्स की भी बात की गई है। और देन टीचर एजुकेशन की बात करते हैं अब, जो 5th चैप्टर में ही आपका अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन, क्योंकि दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ आवर ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो टीचर एजुकेशन की जहां बात है, टीचर एजुकेशन इज 17 प्रोग्राम्स हैं ऑलमोस्ट टीचर एजुकेशन के नाउ बाय द एनसीटी। 17 प्रोग्राम्स अलग अलग हैं। और एनईपी सेज कि 3 programs will be there for B.Ed. One is 4-year, that is integrated. 2 years for simple graduates, and 1 year those who have 4-year graduation degree with research program. So 3 types of program will be there for teacher education. But इसमें जो मेरे को समझ में आया या जो अब रास्ता हमें तय करना, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ। एक तो नोमेनक्लेचर की है, मेरे को किस टाइप का नोमेनक्लेचर होगा 4-year इंटीग्रेटेड के लिए, क्योंकि अभी भी चल रहा है तो 4-year इंटीग्रेटेड इन आरआईस, बीए, बीएससी, बीए, बीएड लाइक दैट ना। तो 2020 जो बात करती है 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और फिर 2 साल की बात करती है, 1 साल की बात करती है। मेरा जो डाउट है वो नोमेनक्लेचर के साथ है, क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर विल बी देयर और हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम वी विल फॉलो इन दिस, इट if it is the same or different as 2 years we are going on, तो उसमें जरूरत क्या है ना। तो we have no answer of this question till date. We have to clarify on this 4-year, 2 years or 1 year nomenclature और curriculum implementation, है ना। और एक जो अच्छी बात तो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, कि कोई भी सिंगल कोर्स वाला, फॉर एग्जांपल कि एक कॉलेज में बीएड ही चल रही है, एक कॉलेज में एमएड ही चल रही है, या एक में जेबीटी चल रही है, वो उस तरह का नहीं होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे बाय 2030। बट उसमें मेरा डाउट फिर है कि उसमें सपोर्ट किस तरह की गवर्नमेंट से रहेगी, किस तरह का उसमें एक्सपेक्टेशन रहेगा, मिनिमम क्या होगा। कई बार जैसे लैंड है, अब लैंड ही कम है आपके पास, लेबोरेटरी कम है, हाउ यू विल स्टार्ट द ग्रेजुएशन, है ना। उसके लिए आपको बहुत सारे टीचर्स की, लैंड की, कमरों की, लैब्स की बहुत सारी जरूरतें हैं। तो हाउ वी विल फुलफिल दैट इज द नो क्लैरिटी टिल डेट, हाउ वी विल कवर इट ना। फिर एनसीटी सिर्फ आपकी एक प्रोफेशनल बॉडी होगी, तो एनसीटी का क्या रोल होगा अभी तो दैट मीन्स डाउट है एनटीए सिलेक्शन करेगी, उससे क्या फर्क है, उससे कोई फर्क मेरे को ज्यादा लग नहीं रहा। मेरा जो सजेशन इसमें ये है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह के हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं। अभी तो आप देख रहे हो कि कोई भी जिसका माइनस में मार्क्स है तभी वो बेर कर लेता है, नॉन अटेंडिंग है वो है, कोई वो गुरेज नहीं है, ठीक है ना। बट क्या एनटीए वो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी देख पाएगी, क्या उसका एटीट्यूड देख पाएगी, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, क्या हम अच्छे उसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी
quality of learner will be depend on the teachers. So how we are selecting the people, those who are coming in the teaching or teacher education, so that depend on the our you can say selection procedure. तो मेरा ये है जो हम उसमें एप्टीट्यूड भी लेके आए, उसमें नॉलेज भी रखें, उसमें कॉम्पिटेंसी भी हम चेक कर पाए ना। और जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर है, तो उसमें हम ध्यान रखें कि जो प्रोफेशनल नॉलेज भी हो, प्रोफेशनल वैल्यूज भी हो, प्रोफेशनल स्किल्स भी हो, है ना। और एक जो मेरा सजेशन है, अब बात तो बहुत हो चुकी है, टॉक हो चुकी है, अब जरूरत है वॉक की। टॉक एंड वॉक, टॉक तो मैं दैट मींस ऑलरेडी वी हैव डन वेरी मच। अब वॉक का मतलब नाउ टाइम टू एक्ट, नाउ टाइम टू वॉक ऑन दिस NEP 2020, नॉट थिंक बट नाउ टाइम टू वर्क। अब उस पर काम करने की जरूरत है। अब काम कौन करेगा? हम और आप लोग करेंगे। दैट्स व्हाई आई थिंक DAN कॉलेज ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार। तो वी हैव टू सेलेक्ट द गुड पीपल, है ना। आर्मी में जैसे होता है, आर्मी क्या करते हैं, आर्मी में पहले आपके ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं, देन उनको ट्रेन करते हैं। तो हम पहले सेलेक्ट कर ले, जिसको आर्मी में बोलते हैं ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो हम टीचर लाइक क्वालिटी के लोगों को सेलेक्ट कर पाए, तब उनको हम आर्मी टाइप के मॉडल से ट्रेनिंग दे पाए, जो कोर कंपोनेंट्स है और प्लस स्पेशलाइज जो भी ट्रेनिंग है उनको दे पाए। तो जरूरी है हमें फर्स्ट, और एक और जो मेरा सजेशन है टीचर एजुकेशन में रिगार्डिंग, कि इंटर्नशिप मॉडल को हम स्ट्रॉन्ग करें। कई जगह को उसको बोलते हैं शैडो इंटर्नशिप, शैडो टीचर। शैडो टीचर मींस उसको हम टीचर्स के अंदर, जो रेगुलर टीचर्स के अंदर 6 मंथ अभी कर तो रहे हैं हम इंटर्नशिप 6 मंथ की, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं लग रही अभी भी। आप सर्टिफिकेट ले आते हो स्कूल से कहीं से भी, है ना, वो उसमें रिग्रेस ट्रेनिंग अंडर था, जैसे डॉक्टर के अंदर, सीनियर डॉक्टर के अंदर जूनियर डॉक्टर करते हैं ना ट्रेनिंग, उस तरह की। हमारा कागजों में तो हो गया 6 मंथ की इंटर्नशिप, बट जरूरत है उसको प्रॉपर उसमें इंप्लीमेंट करने की। अब हमारे पास पॉलिसी तो है, नीति तो है, अब नियत और चाहिए। जो मैं कह रहा था ना, बिल तो है, विल चाहिए। बिल का मतलब नियत, नियत ठीक होगी तो नीति से फर्क नहीं पड़ता। और नीति कितनी अच्छी बना लो आप, अगर आपकी नियत ठीक नहीं है तो देन इट विल अफेक्ट, है ना। तो टीचर्स के लिए, लीडर्स के लिए, एनवायरनमेंट सबको चेंज करना पड़ेगा। और एक मेरा सजेशन है कि एक मॉडल पूरे देश के लिए नहीं हो सकता कि एक ही तरह की टीचर एजुकेशन आप पूरे देश में दो, दैट विल नॉट वर्क, क्योंकि कंडीशन सिचुएशंस अलग अलग है ना। तो 4 ईयर अच्छा करेगा, 2 ईयर्स अच्छा करेगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा वही करेगा जब हमें अच्छे वुड बी टीचर्स मिलेंगे। अच्छे वुड बी टीचर्स कब मिलेंगे? जब हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया या टेस्ट का क्राइटेरिया अच्छा होगा, है ना। तो उसको हम पेडागोजी भी दे देंगे, उसको हम कंटेंट भी दे देंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द गुड स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट कमजोर होगा तो आपकी पेडागोजी ये जो कंटेंट है वो कुछ भी नहीं करे पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे 3 ही सजेशन है, सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट, सेकंड उसको अच्छी ट्रेनिंग रिसर्च बेस्ड, और तीसरा सीधा क्लास में नहीं, जो मैंने कहा शैडो टीचिंग हुआ, है ना, अटैच विद द गुड टीचर्स, देन इट विल वर्क, है ना, तब ये काम कर पाएगी। तो NEP में मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट 3 वर्ड है, ध्यान रखना, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म तो NEP में आ गए हैं, है ना, NEP के थ्रू, बट परफॉर्म अब हमें करना है। सो वी कैन ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, और उसमें सपोर्ट गवर्नमेंट करे ना। तो प्रॉब्लम्स तब भी सोल्व होंगी जब हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को समझ पाएंगे, प्रोफेशनल स्किल डेवलप कर पाएंगे। तो स्किलिंग भी जरूरी है, अप स्किलिंग भी जरूरी है, रीस्किलिंग भी जरूरी है, इवेल्युएशन में भी रिफॉर्म जरूरी है ना। तो ये सारे के सारे हम कमिटमेंट के साथ काम करें, देन वी कैन डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तब हम स्मार्ट बना पाएंगे बच्चों को। स्मार्ट बच्चे क्या है? दोज हु विल बी सेंसिटिव, दोज हु विल बी मोटिवेटेड, दोज हु विल बी अलर्ट, दोज हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड दोज हु विल बी विद द टेक्नोसेक। तो इसके लिए हमें 4D का फार्मूला है। हम डिप्रेस्ड के लिए काम करें, डिप्राइव्ड के लिए काम करें, डाउन ट्रोडन के लिए काम करें, और डिस्क्रिमिनेशन को कम करें। तो नियत पे डिपेंड करेगा नीति को कैसे लागू करेंगे। 3 ना जरूरी है हिंदी के, नीति, नियत और नेतृत्व, तो ये जरूरी है आपके। तो विद दीज वर्ड्स सर, डॉक्टर गुरविंदर कौर मैडम, डॉक्टर विकास और
डॉक्टर कविता और संजय केशरवानी साहब, सबका मैं आभारी हूँ। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। अब कोई आपके सवाल हो, आपके सुझाव हो, जवाब हो, बोलना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, तो नाउ इट्स ओपन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े ही सरल तरीके से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सभी को बताया। ये पॉलिसी कैसे आने वाले समय में सारा सिस्टम चेंज करेगी, ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, बल्कि टीचर एजुकेशन का। आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी को इससे अवगत कराया। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो कृपया चैट बॉक्स में अपना प्रश्न जो है वो लिख सकता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई भी प्रश्न आया नहीं है चैट बॉक्स में जो हम दिनेश जी से पूछ सकें, ताकि हम और क्लैरिटी इस विषय पे ले सकें। सर, दो तरह से सवाल नहीं पूछते पार्टिसिपेंट्स ना, या तो सारा समझ में आ जाता है जब नहीं पूछते, या कुछ समझ में नहीं आता तब नहीं पूछते। तो डैन कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे हैं या क्या है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन दो तरीके से सवाल नहीं पूछते। अब कौन सा मान के चले हम ये नहीं पता। हाँ जी। फिर भी आपका कोई सवाल है, नोट सवाल, आपका कोई ऑब्जर्वेशंस है, सुझाव है, जरूरी नहीं मैंने जो बात कही ये मेरी समझ थी, मैंने जो कहा। क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। चलो सर, दिनेश जी। हाँ सर, प्लीज प्लीज। हाँ जी, वो दिनेश जी, जैसे मतलब एनईपी कह रही है, एनईपी ये देख रही है कि 100% एनरोलमेंट हम स्कूल एजुकेशन में करना चाह रहे हैं, और मोर देन 50% हम चाह रहे हैं कि अब हमारा हो जाएगा इन हायर एजुकेशन आल्सो। ठीक है ना सर? लेकिन इस पे जीडीपी की बात कितनी होगी, कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर। That is a pertinent question. Yes sir. Yes sir. हाँ जी। Now it's mandatory to spend 6% of GDP. अभी तक हम बात करते आए थे होना चाहिए, but now they will arrange the funds with 6% of GDP. So that is the relevant question or I have to cover. But यही है कि इतने टाइम में हम इतना ही कवर कर सकते थे, अदरवाइज तो बहुत सारे हायर एजुकेशन का हमने छोड़ दिया क्योंकि टीचर एजुकेशन जरूरी था, इसलिए मैंने टीचर एजुकेशन थोड़ा टच किया है। बिल्कुल सर, लेकिन जो पिछला बजट है उसमें भी 6% आया नहीं सर जीडीपी का। अभी नहीं आया। अभी तो मैं कह रहा हूँ 2021 तक जो चीजें बननी थी अभी तो वो भी नहीं बनी है, हम लेट हैं। हाँ, चल भी रहा काम लेकिन धीमे है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बात है ग्राउंड पे दिख नहीं रहा। धीरे धीरे चल भी रहा है लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होप फॉर द बेस्ट सर, ऐसा नहीं है। चलो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर ये अच्छी नीयत से, जैसे आपने कहा, अगर इस अच्छी नीयत से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो समय है वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा सर, बहुत बढ़िया होगा। We will able to produce much more responsible citizens with the help of this policy, I think. Thank you very much sir. Now I request Dr. Kavita ma'am for vote of thanks. Dr. Kavita. जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। NEP 2020 इश्यूज एंड कंसर्न्स वेबिनार में श्री विनोद भारद्वाज जी, वाइस प्रेसिडेंट कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, तथा आज के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश चाहल का विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रधानाचार्य तथा सभी प्रतिभागियों की ओर से अति धन्यवाद। आज हम सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अवगत हैं, परंतु इसके मुद्दों तथा चिंताओं पर जो चर्चा आपके द्वारा की गई है वह सराहनीय है। सरकार के द्वारा शिक्षा नीति शिक्षा के सुधार, प्रसार तथा विकास के लिए बनाई जाती है तथा जतन किए जाते हैं उसकी सफलता के लिए, किंतु फिर भी कहीं कोई खाली स्थान रह जाता है तो आप जैसे महान अभिव्यक्तियों के सुझावों से उसे भरने की कोशिश की जाती है। आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा जगत में एक नया सूर्य उदय होगा तथा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं शिक्षा के सुधार, विकास तथा प्रसार के लिए, उनको पूर्णता से प्राप्त किया जाएगा। अब ज्यादा समय न लेते हुए
मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ प्रतिभागियों का जिन्होंने इस वेबिनार की सफलता के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद इन शब्दों के साथ। किस कदर शुक्रिया अदा करूं, किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते। किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती, जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे दोस्त ना मिलते। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर साहब एक दो क्वेश्चन आ गए हैं, अगर आपके पास समय हो तो। हाँ जी, हाँ जी सर। एक पहला क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि इज NEP 2020 इज अल्टरनेटिव ऑफ 1986 एजुकेशन पॉलिसी? सर मैंने पहले ही कहा है, नहीं अल्टरनेट नहीं है उसका, ये सपोर्टिव मान लीजिए। अब देखिए बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है, उसकी उसकी कई चीजें रही जो हम लागू नहीं कर पाए, है ना। बिल्कुल तो ठीक है, हम उससे प्रेरणा तो ले रहे हैं। उससे मैंने कहा था ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम उन भूलों से सीखेंगे। जो प्रेजेंट में चैलेंज है उन पे काम करेंगे, सो वी कैन मेक अवर फ्यूचर। सो ऐसा नहीं है कि वो कम थी, मैं उसको नहीं कह रहा, वो टाइम के हिसाब से ठीक थी, लेकिन आज जरूरत कुछ और है हमारी, है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी चेंजेस इन कैरियर एडवांसमेंट स्कीम इन NEP? सर वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनेंगे टीचर्स के लिए। तो उन पे बेस मैंने बताना कि अब ये नहीं कि मेरे को 10 साल हो गए जॉब करते, मेरी प्रमोशन हो। नो, दैट विल डिपेंड ऑन योर, यू कैन से प्रमोशन और योर इंक्रीमेंट्स एंड ऑल विल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल। स्कूल्स के लिए तो जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट वो करेंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनेंगे जहां पे इवैल्यूएशन होगी और उसके बेस पे आपके प्रमोशन और जो इंसेंटिव्स है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि आप बोली जाएं और हम लोग सुनते जाएं, ताकि हमारी सारी शंकाएं दूर होती जाएं। जब सब ठीक होगा, जब वर्कशॉप करेंगे कॉलेज में, तब बात करेंगे लंबी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू। कोविड का चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, वो मोड़ कब होगा वो आप डिसाइड कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने कैमरे ऑन कर दें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक यू ऑल। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी बच्चे हम फीडबैक सेंड करेंगे आपका, तो आप उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजना, फिल करना, क्योंकि ऑटो जनरेटेड है। अगर आपने थोड़ा सा भी इनकरेक्ट की तो आपका सर्टिफिकेट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट है कि फीडबैक में आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हैं उसी से हिसाब से ही भेजें। थैंक यू बच्चे।